Hello everyone, welcome to my YouTube channel Steno with Raj. This is me, Rituraj Singh. I'm back with another video of mine. In this particular video, I'll be discussing as to what it takes to crack any central government or state government exams in the very first attempt itself. This can be really very helpful to all of those aspirants who are preparing for government exams or who are thinking of preparing for government exams in the near future. So please इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए because the things which I am going to tell you, I have gained all those things from my own experience. तो वही मैं आप सबसे शेयर करूंगा and I hope this will be really helpful for you. So before beginning with the actual video, to those of you who are new to my channel, I would just like to give you a brief introduction about myself. I am Rituraj Singh. I belong to Uttar Pradesh state and I am having experience of clearing many government written exams like that of CGL, CHSL, state exams like video, Gram Panchayat Adhikari, even court exams. And I am currently serving as at the designation of personal assistant in National Investigation Agency. And as many of you are, I'm also waiting for my results regarding SSC Stenographer 2018 batch, wherein probably I would be getting my desired grade pay. So let us begin with the actual video. This video will be all about understanding as to what it takes to crack any government exam irrespective of its designation in the very first attempt itself. ऐसी क्या बातें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, on which हमें काम करना चाहिए, so that कि हम instead of wasting a lot of time of ours उस एग्जाम को in the very first attempt क्रैक कर सकें. मैंने पहले भी कहा दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये सारी बातें जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं मैं वही सब शेयर करूंगा, तो दिस विल सर्टेनली बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सबसे पहली बात ये आती है कि हैव दैट करेक्ट इनसाइड यू. आप बिफोर गोइंग फॉर एन एग्जाम आप ये समझिए कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट एग्जाम एंड व्हाट इट विल टेक यू टू क्लियर दैट एग्जाम. आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आप किस जगह एग्जिस्ट करते हो अभी और आपको कितना हार्डवर्क करना है उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए और आप कितने रेडी हो डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए. इसको कहते हैं करेक्टर बिल्डिंग. अगर आप में वो करेक्टर है तो डेफिनेटली यू विल गो टू अचीव वॉट एवर यू एम फॉर. और सेकेंड बात ये होती है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं. आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए. कॉन्फिडेंस बढ़ाने की हजार तरीके होते हैं. जैसे कि आप कॉन्फिडेंस किन चीजों से आता है. कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा आता है आपके अपने हार्डवर्क से. अगर आप डेली अपना कुछ समय अपने टारगेट के लिए दे रहे हो तो इसका मतलब यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट. आप उसके लिए काम कर रहे हो और वही हार्डवर्क आपका कॉन्फिडेंस बन के बोलता है. बिकॉज यू आर बैक्ड बाय योर प्रिपरेशन, यू आर बैक्ड बाय योर कंसिस्टेंसी. सो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. अगर आप काम नहीं कर रहे हो उस चीज के ऊपर तो यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो कॉन्फिडेंट भी नहीं रहोगे किसी भी बात को बोलने से पहले. उसके बाद ये आती है कि जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो आप अच्छे से उसका सिलेबस इनसाइड आउट पढ़िए. सिलेबस वो होता है, हमेशा याद रखिए, सिलेबस वो होता है जो कि एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है. आप उसको निकालिए, उसको पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए और फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ योर प्रिपरेशन आप उस सिलेबस को अपने पास रखिए. आप उसमें से देखिए कि हाउ in what manner the questions have been asked in the examination, in what manner they have been mentioned in the syllabus, what topics have been mentioned in the syllabus and what are their manners and what are the manners in which that particular topic has been asked as a question in the exam. ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है because unless until you are thorough with your syllabus आपके लिए वो एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाता है because you are unaware of the things which you are going to face in the exam. So you need to be very specific, very thorough with the syllabus. You need to learn the entire syllabus कि हम क्या पढ़ना है, हमें क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता है, most importantly, so that you do not end up wasting a lot of time of yours जो कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए था और आपने पढ़ के अपना समय वेस्ट कर दिया और पता लगा एग्जाम में वो चीज आती ही नहीं है. उसके बाद ये आती है कि स्टडी मटेरियल. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम स्टडी मटेरियल कितना और क्या रखें. तो देखिए हर एग्जाम के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और मैं यही कहूंगा कि कम बुक्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अपोजिट वे.
आप ये मत करिए कि एक एक सब्जेक्ट की 10-10 बुक लेके रख लिया, बिकॉज बिलीव मी, आप या कोई भी वो सारी किताबें नहीं पढ़ सकता है। आप उतना ही सिलेबस रखिए जितना नेसेसरी है, जितना रिक्वायर्ड है, और आप उसको रिवाइज करिए। अगर आपने एक बुक को एक बार खत्म किया है तो यू नीड टू बी थॉरो विथ इट। आपको एक एक रूल, एक एक प्रोसीजर, एक एक तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए, कि अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉल्ट करके भी पूछा जाए तो यू then also you should end up answering those things. So instead of going for a lot of material, study material, and end up revising nothing, you better go for revising a lot, revising those things which you have studied. और ये तभी हो सकता है जब आपका स्टडी मटेरियल लिमिटेड हो। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री सोर्सेस। आज के समय में आपको भी पता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इज ह्यूज। आप किसी चीज के लिए भी आप एज अ रेफरेंस इंटरनेट को यूज करते हो, तो आप एक मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टिक रहिए एक चीज पे, बट स्टिल आप सेलेक्टेड चीजों को ही देखिए, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है एक चीज को समझाने के लिए 1000 लोग इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बी इट यूट्यूब और गूगल, कुछ भी हो, किसी भी वेब सर्वर पे, किसी भी कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको एक चीज को समझाने के लिए 10,000 लोग अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है? क्या आपको उन सबकी बातें सुननी है? नहीं। आपको एक एक अच्छे चैनल को, जो भी आपको लगे, आप उसको पकड़ के चलिए। वॉट एवर ही सेइंग, अगर आपको लगता है कि ये रिलायबल है, इससे आउटपुट मिलेगा आपका, अगर कंसाइंस ये बोलता है कि हाँ दिस दिस कैन बी ट्रस्टेड विथ, तो आप उस चीज पे काम करिए, अदरवाइज नेग्लेक्ट करिए उसको। लेकिन सबको मत फॉलो करिए प्लीज, बिकॉज उसमें क्या होगा, आपका ही अपना टाइम वेस्ट होगा। और ये चीज अच्छे से याद रखिए कि हु इज देयर टू अर्न मनी, और कौन, किसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज सारे, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो यू नीड टू सेलेक्ट इन अ वेरी वाइज मैनर। उसके बाद बात आती है कि आपका कंसिस्टेंसी कैसा है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए आपको इंटेलिजेंस से ज्यादा आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मायने रखता है, क्योंकि आप बात तो सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करने की नहीं आती है, अब बात आती है फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने की। आप कट ऑफ को पार करके आप खुश नहीं हो सकते, बिकॉज यू विल बी अनसर्टेन कि पता नहीं आगे चल के फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा क्या। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आप कंसिस्टेंट रहिए, ज्यादा मेहनत करिए, डेली बेसिस से मेहनत करिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट टर्निंग द व्हील इन द एंड डेज। और आप खुद देखेंगे कि डेली हार्डवर्क मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपने हर दिन कुछ समय दिया है, तो वो इट विल एंड अप इन मेकिंग यू लर्न दोज थिंग्स और रिवाइज दोज थिंग्स, दोनों ही मैटर करता है। उसके बाद एक बात याद रखिए कि एसएससी और बैंक एक ही नहीं होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं ये नहीं कहता आप सब कुछ छोड़ के एक के पीछे लग जाइए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम बिफोर एग्जाम दिस। हमको सबसे पहले एक जॉब क्लियर करने का हम लोग सोचते हैं, तो एक एग्जाम को लेके आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी डिस्कस की है आपसे, क्योंकि वो मेरे लिए यूजफुल रहा है। उस स्ट्रेटजी के दम पे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई एग्जाम्स निकाले हैं, तो आई कैन नरेट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी विद सम कमांड एंड अथॉरिटी। अगर आपके लिए वो यूजफुल रहेगी, और बिल्कुल रहनी चाहिए, बिकॉज अगर एक इंसान उससे रिजल्ट यील्ड करता है तो दूसरा भी कर सकता है, तो इस बात को अच्छे से समझिए। उसके बाद ये आता है कि आप अपनी शक्तियों को और अपनी कमजोरियों को अच्छे से पहचानिए, और जो भी आपके वीकर सेक्शंस हैं, बी इट मैथ्स, इंग्लिश में कुछ भी है, और या फिर रीजनिंग में कुछ भी है, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम कंप्लीटली, आप उनके ऊपर काम करिए, स्टेडली काम करिए, एंड यू विल सी कि आप धीरे धीरे अगर उनके ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उसमें बेस्ट नहीं बनेंगे तो भी आप इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप उसमें मार्क्स फेच कर सकें, बिकॉज हमको करना भी वही है। वी आर नॉट हेयर टू डू अ पीएचडी इन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन क्लियर एसएससी एग्जाम। उसका यूज क्या है? इंस्टेड आप अपने सारे टॉपिक्स को अप टू डेट रखिए, हर टॉपिक पे इक्विवेलेंट मेहनत करिए, और इतने इस लायक बनिए कि आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कर सकें। आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, और फॉर दैट पर्पस जो भी बनता है आपको वो करना पड़ेगा, और आप वो करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज में अंतर समझिए। वीक एरियाज जो हैं उन पे स्पेशल एम्फेसिस दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू। उसके बाद ये आता है कि अगर आप एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज क्या होता है कि हम 10 चीजों के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो 10 चीजों के ऊपर हम समय दे रहे हैं।
इंस्टेड अगर हम एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो जो 10 चीजों का देने वाला समय था वो हम उसको दे रहे हैं, तो चांसेस ऑफ आवर्स गेटिंग सक्सीड ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर। तो हमेशा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मल्टीपल टारगेट्स, आप एक एम रखिए, उसको टारगेट करिए, उसको अचीव करिए। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि इन स्पाइट ऑफ अवर हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ अवर बेस्ट स्ट्रेटजी, हम उस चीज को कोप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैंने एनडीए और सीडीएस के बहुत एग्जाम्स दिए थे और ऑलमोस्ट सारे में मैंने रिटर्न क्लियर किया विथ फाइन मेरिट। मुझे पता है फाइन मेरिट के हिसाब से रिटर्न क्लियर किया मैंने, बट उसमें वही है, इंटरव्यू भी होता है, एसएसबी भी होती है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लियर हो पाया। बट फॉर मी, विथ मी द केस वाज कि आई ऑलवेज हैड प्लान बी। मुझे अच्छे से पता था कि मैं इस हिसाब से तैयारी करूंगा कि एसएससी के एग्जाम्स भी मैं साइमल्टेनियसली फोकस करूं और उनको निकाल दूं। ऐसा ही किया मैंने। वहां से छूटते ही मैंने इधर तैयारी किया और एक के बाद एक एग्जाम्स क्लियर हुए। तो ऐसा ही करना चाहिए। आप एक चीज के ऊपर एम करिए, अच्छी बात है, बट साइमल्टेनियसली वो जो प्लान बी है उसको एक अपने दिमाग के एक छोटे से कोने में रखिए हमेशा। सब कुछ छोड़ के एक की तरफ मत भागिए। उसके बाद बात आती है मोटिवेशन की। हम लोग इधर उधर यहाँ वहाँ मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, बट मैं यही बात आपसे कहूंगा कि आप ऐसे समय में क्या करिए, अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान करिए। आप अपने अचीवमेंट्स को एक बार सोचिए और हमेशा याद रखिए कि आप अपने लिए काम कर रहे हो और कोई भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो यू आर योर रोल मॉडल एंड यू आर योर बिगेस्ट क्रिटिक एंड बिगेस्ट एंथुजियास्ट। तो आप ही अपने लिए जो कर सकते हो करोगे। ठीक है, यू आर योर रोल मॉडल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सर्च मोटिवेशन। आप अपनी जगह देखिए, आपको कहाँ पहुंचना है वो जगह देखिए। ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ पाथ कि हाँ, दीज आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क ऑन, और इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। उसके बाद सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूंगा कि प्लीज डू रीड। आप जितना हो सके उतना रीडिंग करिए, बिकॉज रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट जो कि मैंने अभी तक फील किया है, जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज इट विल गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ विजडम। अब आपको ये लगेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। आप ये समझिए कि विजडम बहुत जरूरी है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। मैंने अभी भी कहा, कुछ लोग होते हैं वो बहुत पढ़ते हैं बट स्टिल दे एंड अप अचीविंग नथिंग व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ लोग होते हैं दे नो द स्ट्रेटजी, दे नो द वे, और वो उसको फॉलो करके दे क्रैक। तो प्लीज डू रीड। रीडिंग में न्यूज़पेपर आता है सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज उसको फॉलो करिए। बिलीव मी, अगर आप कंसिस्टेंट हैं उसको लेके, अगर आपके पास अच्छी हैबिट है न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो इट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग मिरेकल्स। आपकी उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट वो देगा। उसके बाद एक बात मैंने पहले भी कही थी, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप अपने से ऑनेस्ट रहिए, आप अपनी कमियों को अच्छे से समझिए, उनके ऊपर पर्दा मत डालिए और उन पे वर्क करिए। उनको वर्क करिए, उनको ओवरकम करिए, और आप जिन चीजों में आप, जो आपके वीक एरियाज होते थे, आप काम करके उनको अच्छे करिए, उन पे नंबर लाने की कोशिश करिए। उसके बाद बात आती है कि भीड़ से अलग होके थोड़ा चलिए। भीड़ से अलग आप कैसे होगे? भीड़ से अलग आप तभी होगे जब आप वो सब काम करोगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप वैसी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आप वो प्रैक्टिसेस करोगे जो बाकी नहीं कर रहे हैं। आप, मैंने अभी पहले भी कहा, अगर कोई वीक एरिया है आपका तो आप उस पर काम करिए। जो सब लोग छोड़ देते हैं आप उसको पकड़िए, आप उस पर काम करिए। दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। बिकॉज आपको भी पता है 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 1,000 का सिलेक्शन होता है, दिस इज द रेशियो इन इंडिया। तो वो 1,000 लोगों में क्या ऐसी क्वालिटी होती होगी, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको परसेप्शन बनाना है वैसा, और उसी हिसाब से आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। उसके बाद बात ये आती है टाइम टेबल की रिगार्डिंग। टाइम टेबल की रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि टाइम टेबल आपके अपने शेड्यूल के हिसाब से होता है। आपका पूरे दिन का, जिसको दिनचर्या बोलते हैं, वो कैसी है, आपको कैसे किस समय में क्या काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, उसके बाद पढ़ाई भी करता हूँ, और अभी न्यू यूट्यूब का भी इनिशिएटिव लिया है मैंने। तो उसी हिसाब से आई नीड टू सेग्रीगेट माई टाइम। तो ये बात आप सबसे अच्छा जानते हैं। आप किसी से पूछिए मत कि कैसा टाइम टेबल मैं बनाऊं। आप इस हिसाब से उस आवर्स को कैटेगराइज करिए कि आप हर चीज के ऊपर बराबर समय दे सकें।
और जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज्यादा समय दे सकें। बस ये सिंपल सी लॉजिक होती है। उसके बाद टारगेट सेटिंग, जो टाइम टेबल में एक हम लोग नीचे लिखते हैं कि हमको इतने दिनों में ये काम पूरा करना है, वो थोड़े से रियलिस्टिक बनाइए। और प्लीज जितना हो सके छोटे टारगेट्स बनाइए। आप ये मत करिए कि हम एक साल में हम ये करेंगे। दिस इज नॉट अ टारगेट, दिस इज अ गोल, दिस इज एन एम। टारगेट उसको कहते हैं कि हाँ, हमने इस 2 दिन में ये किया। हम हर हर दिन वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उसको अगले दिन रिवाइज करेंगे, और फिर वीकेंड में हम एनालिसिस करते हैं कि क्या हमने वो सारे काम किए। अगर किए हैं देन यू आर गोइंग इन अ ब्यूटिफुल वे, यू आर जस्ट ब्रिलियंट, और आप बहुत अच्छे से जा रहे हो एंड यू विल एंड अप क्रैकिंग द एग्जाम। बट अगर वो चीजें नहीं आ रही हैं तो आप इस चीज को जरूर देखिए कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन, और फिर उस पर काम करिए। क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ समय खत्म हो रहा है, ये चीज को अच्छे से, क्योंकि ओनली यू मेड दैट टाइम टेबल, और अगर आपने वो टाइम टेबल बनाया है तो आपको उसको फॉलो करना है। टाइम टेबल रियलिस्टिक रखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए, और फ्लक्चुएटिंग रखिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए, बहुत रिजिड मत रखिए। ऐसा रखिए कि अगर आपको कोई एक्सीजेंसी आती है तो आप उसको ओवरकम करके आप कुछ बाद में उसमें रीएडजस्टमेंट कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, हमको एक दिन में 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो वो हमारा पूरा दिन खराब हो गया। नहीं, आप इस तरह से रखिए कि ठीक है, यहाँ का यहाँ पे कवर करेंगे, वहाँ का वहाँ कवर करेंगे। दिस इज द वे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे वीडियो की मैं यही कहूंगा कि आप कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, ये सिर्फ एसएससी या बैंक एग्जाम्स के लिए नहीं होती हैं, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, आप किसी भी जॉब में होंगे, आज नहीं तो कल यू विल गेट अ जॉब डेफिनेटली। आप किसी भी जॉब में होंगे, कुछ चीजें बहुत काम आएंगी। सबसे पहली आती है उसमें स्पोकन इंग्लिश आपका। इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। आप अपनी अच्छी इंग्लिश इंप्रूव करिए अगर आपने अभी तक नहीं उस पर काम करना शुरू किया, बिकॉज बिलीव मी, आपको बहुत आगे ले जाएंगी ये सब चीजें। ये सब चीजें बहुत आगे ले जाएंगी। उस सबसे पहला आता है उसमें स्पोकन इंग्लिश, न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आपका अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आपका स्पोकन इंग्लिश अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, बहुत ध्यान दीजिए प्रोनाउंसिएशन पे, बहुत यूजफुल होता है, ये बहुत जरूरी होता है समझना। उसके बाद बात आती है टाइपिंग स्किल्स। आप किसी भी जॉब में हो, बिलीव मी, किसी भी जॉब में हो, आप छोटी से लेके बड़ी, आपको टाइपिंग आनी ही आनी चाहिए। एंड जितना हो सके दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों मतलब इंग्लिश एंड हिंदी, स्पेशली इंग्लिश आपको आना ही आना चाहिए। फॉर्चुनेटली इन एसएससी तो टाइपिंग एग्जाम का ही एक पार्ट होता है, बट अगर नहीं भी है तो स्टिल प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट। और उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ चीजें होती हैं जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। ये 3 चीजें तो मस्ट टू नो है, क्योंकि आप किसी भी जगह जाएंगे इन तीनों का इस्तेमाल होना ही होना है आज के समय में। और जो जनरेशन आ रही है, इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ना है, कम नहीं होना है। तो इस वीडियो में सिर्फ लास्ट की जो मैं बात ये कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 टारगेट रैंक 1। आप ये मत सोचिए कि जस्ट कट ऑफ बीट कर लें और हम आपसे कैसे भी करके सिलेक्शन ले लें, बिकॉज यार आप खुद ही देखिए, रिटन एग्जाम की कट ऑफ जो जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट उससे कितनी ऊपर जाती है। तो जब तक आप जो पिनेकल है उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये तैयारी किसी भी काम की नहीं होगी। तो प्लीज आप अल्टीमेट एम या फिर जो अल्टीमेट उसमें ग्रेड पे सबसे ज्यादा, उसको टारगेट करिए, और हमको ये हासिल करना है, उस हिसाब से मेहनत करिए। तो दीज आर द थिंग्स मेरी तरफ से। और अगर आपको कुछ भी इनके रिगार्डिंग बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, पूछिए। जैसा कि आपको पता है, अभी मेरी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, स्पेशली एमिंग एट दिस अपकमिंग एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 रिटन एग्जाम। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगली वीडियो में आई विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश। तो तब तक के लिए डू टेक केयर, डू वर्क हार्ड, प्लीज बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज ऑल फॉर योर डेवलपमेंट। साथ में हम दोनों लोग मिलके वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो प्लीज डू सपोर्ट, एंड इन टर्न प्लीज have this experience of mine which will definitely help you in getting what you want. Thank you so much. Please take care. Stay healthy.